ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಶೈನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 9th ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ 9th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 10 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ನೀವು ಇಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೆ, ಶೈನ್ ನದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 6th ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ IITN ಅಥವಾ IAS ಆಗುವ ಕನಸಿತ್ತು. ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು 6th ನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ 10th ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕನಸು 10th ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ 9th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾವ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, GND ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮದರ್ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಲಾಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಓದುವ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. वचना श्री पार्टी 3rd रैंक लाई. विनीत नायगुर कर्नाटक स्टेट का 3rd रैंक. तीसरा नासिर हुसैन बिलो 25 रैंक के साथ मुसलसिल आ रहा है. 5 साल से बिलो सिंगल डिजिट के साथ शाहीन में रैंक आ रहे हैं. और ये शाहीन में वो सिर्फ कल्चर की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. और हम कल्चर को जो है, शाहीन एक कल्चर का नाम हम बताते हैं कि कल्चर का डिसिप्लिन का नाम है. और शाहीन टोटली ट्यूशन फ्री है. शाहीन में सिर्फ अच्छे स्टूडेंट को लेते हैं, टॉप रैंक को लेते हैं, ऐसा नहीं है. आज तक हम किसी भी स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स के बेसिस पे रिफ्यूज नहीं करें. ड्रॉप आउट को इम्प्रूव करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. 5 साल 6 साल 10 साल ड्रॉप आउट रहे, कभी स्कूल नहीं गए, उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन है. उनके लिए एक स्पेशल हम सक्सेस किए हैं, सक्सेस स्टोरी हमारे पास है. एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसका नाम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट.
ये एआईसीयू में जो ड्रॉप आउट है या कभी स्कूल नहीं गया है, बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसको उसके मैथड्स और लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करते हैं। मैक्सिमम 3 मंथ्स में वो स्टूडेंट 9th या 10th में बैठने के काबिल होता है, फिर रेगुलर एग्जाम देता है। और ऐसे अब तक 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में एडमिशन हम कराए हैं, ड्रॉप आउट्स को और मदरसा ड्रॉप आउट को, और कभी स्कूल नहीं गए थे, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एफर्ट करते हैं। और किसी स्टूडेंट्स के फेल होने के लिए इंडिया भर में कल्चर चल रहा है, बच्चे को 9th तक लाते हैं, रिजल्ट खराब होता है, उसके 9th में जो है उसको निकाल देते हैं या फेल करते हैं। इससे जनरेशन का बड़ा नुकसान हो रहा, इस तरफ तवज्जो देना है। बच्चा फेल हो जाए तो भी उसको जो है कबूल करना है, उसको इम्प्रूव करना है। इसके डॉक्टर ये नहीं बोलता कि ये इसका खतरे में है, इसका हम इलाज नहीं कर पाऊंगा बोल के बाहर रोड पे नहीं छोड़ते, आखिर तक उस पर मुसलसल कोशिशें होती हैं। वैसे ही इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी होती है। और एक इशू खास तौर पर हम महसूस कर रहे हैं, हर तरफ गर्ल्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन बॉयज ऑल ओवर इंडिया। यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बेटियां पढ़ रही हैं, बड़ी खुशी होती है। तकरीर करने वाले तकरीर करके खुश होते हैं, लीडर्स भी जो है गर्ल्स के लिए इंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बेटियां पढ़ रही हैं। लेकिन बेटे यूनिवर्सिटीज से खाली होते जा रहे हैं, इस तरफ तवज्जो देना है। ये अनबैलेंस अगर बढ़ जाए, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इसके लिए, 5-10 साल के अंदर पूरा जो है सोशल जो है डिस्टर्बेंसेस जो बढ़ जाएंगे, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा है, उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। बेटियों को एहसास है कि इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए हाईली। आज शाहीन के एनईटी 2020 रिजल्ट्स आए, तो हमारे साथ मिस्टर अरबाज है जो 3rd है एनईटी रैंक में। अरबाज, नशमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो हाउ डिड यू, आप कैसा प्रिपेयर किए नशमन न्यूज़ को, हमारे व्यूवर्स को आप कैसा प्रिपेयर किए? मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, तो कंटिन्यूसली 2 साल के कंटिन्यूस एफर्ट के बाद ये रैंक लाना पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ जो भी स्टूडेंट है ये ना मत सोचें कि अभी सिर्फ 6 मंथ्स है नीट 2021 के लिए कि वो कुछ नहीं कर सकते, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट है उसको अच्छे से रिवाइज करें। तो मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, मेनली नीट का जो पैटर्न है 720 मार्क्स का है, जिसमें से 360 मार्क्स मेनली बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी सबसे पहले आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। बायोलॉजी में कम टाइम में आपको अच्छे से स्कोर करना पॉसिबल है बायो में। और फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फिजिक्स में डर रहता है, लेकिन फिजिक्स इट्स एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स में कंपेरेटिवली दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा। मॉर्निंग में मेरा जो डेली शेड्यूल था, सुबह में मैं फजर की नमाज पढ़ता था, कॉलेज में हॉस्टल स्टूडेंट था मैं, तो फजर की नमाज के बाद 1 आवर सेल्फ स्टडी, फिर 7:30 to 9 तक हमारे कॉलेज में डेली रूटीन चलता था, सेल्फ स्टडी क्लासेस जो भी है। बीच में आफ्टरनून सेशन में स्लीपिंग आवर्स, ताकि हम रिफ्रेश करें अपने माइंड को दिया जाता था। फिर कभी एग्जाम के टाइम पे 11 तक रात में सेल्फ स्टडी होती थी। ऑलमोस्ट नीट के लिए मैं ये समझूंगा कि सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग जितना इंपॉर्टेंट है, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, खुद से पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप जो ये एनवायरमेंट में थे, शाहीन का एनवायरमेंट कैसा देखा? शाहीन का जो एनवायरनमेंट था, शायद पूरे कर्नाटक में ऐसा एनवायरनमेंट मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मैं देखा हूँ ऐसा तो एनवायरनमेंट कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन होता है, मोस्ट ऑफ द स्कूल में भी मैं देखा हूँ कि कंपटीशन मतलब स्टूडेंट में ही आपस में कभी ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, खुद स्टूडेंट एक दोस्त अपने दोस्त को और ऊपर जाना, ऐसा ही सिखाया गया है हमें कॉलेज में भी। जिसलिए एक क्लासरूम से मेरा स्टेट रैंक 3rd है और मेरे दोस्त कार्तिक रेड्डी का स्टेट रैंक 1st है। तो ये प्रूव करता है कि हमारा जो क्लासरूम का जो बिहेवियर था, आपस में फ्रेंडली ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत ही बेनिफिशियल था नीट के लिए। आपका फ्यूचर प्लान क्या है नीट? अब डॉक्टरी ले रहे हैं या इंजीनियर? फ्यूचर प्लान नीट में ऐसा रिजल्ट के बाद आई विल बी बिकमिंग ए डॉक्टर MBBS से इंशाल्लाह। आई एम एक्सपेक्टिंग सीट इन दिल्ली। कौन सा स्पेसिफिक डॉक्टर में? स्पेशलिस्ट तो शायद अभी उतना इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है स्पेशलिस्ट के बारे में, तो करंटली आई एम नॉट डिसाइडेड, लेकिन ड्यूरिंग MBBS आई विल डिसाइड द स्पेशलिस्ट। एक और बात, आपने नीयत की बात की कि नीयत कोई तो बड़ी चाहिए। के लिए जो भी व्यूअर्स है सबके लिए मैं मैसेज करना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि अमल का दारोमदार नियत ही है।
तो जो भी आप काम कर रहे हैं सबसे पहले आपका नीयत पे खुलूस होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर सबसे पहले आप खुद से सवाल करेंगे कि क्यों डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो समाज की सेवा के लिए, और ये जो आपकी नीयत अगर साफ है तो यकीनन आपको गॉड अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और आपका जो भी पढ़ना है वो भी अपना पे इबादत में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी कॉलेज में आप ट्राई कर रहे हैं? इंशाल्लाह एम्स दिल्ली आई विल ट्राई टू गेट सिटी इन एम्स दिल्ली, इंडिया टॉप मेडिकल कॉलेज। फिर से मैं एक मुबारकबादी देता हूँ। होप आप डॉक्टर इसमें आपको पूरा सपोर्ट है ना शाइन से पूरा सपोर्ट है ना जो न्यू कॉलेज ज्वाइन हो रहे हैं? हाँ, शाहीन से पूरा सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग डे 1 से जूनियर कॉलेज भी मतलब टीयू बोर्ड भी यहीं से हुआ, नीट का प्रिपरेशन भी यहीं से हुआ। शाहीन में ये था कि कोई भी डिस्ट्रक्शन से हम दूर थे। मोस्ट ऑफ द मेरे जो फ्रेंड थे एक कॉलेज में थे, बोर्ड्स का प्रिपरेशन वहाँ से कर रहे थे और कोचिंग कुछ और इंस्टीट्यूट से, लेकिन वो शाहीन में ऐसा माहौल नहीं था। बोर्ड प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन, सबका सिलेबस भी सेम है। इट इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो एक ही इंस्टीट्यूशन में आप भरोसा रखिए, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। फिर से आपको मुबारकबादी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर जल्द से जल्द बने और देश की खिदमत करें। शुक्रिया। मिस्टर अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। सर, पहली बात आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आपके दोनों स्टूडेंट्स एनईटी मेंस में टॉपर हैं। तो आप कैसे स्टूडेंट्स को क्या इंकरेज किया? देखिए, स्टूडेंट्स की हम ज़रूरत को फील करते हैं, बच्चों को क्या चाहिए और किस लेवल पर चाहिए। सबको एक साथ जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसको पूरा करते हैं। बेसिक के साथ हर स्टूडेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और जिस स्पीड से वो फॉलो करता है उसको उस लेवल पर जो है फैसिलिटीज देते हैं, डाउट क्लियर करते हैं और उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। वो जो है माहौल, कल्चर, डिसिप्लिन, मेनली जो है इन्वायरमेंट, प्यार भरा इन्वायरमेंट, भाईचारे का मोहब्बत वाला इन्वायरमेंट, और स्टूडेंट्स आपस में बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, हॉस्टल में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से स्टूडेंट्स में हिम्मत बढ़ती है और जैसे जैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और जैसा जैसा वो परफॉर्म करते हैं वैसे उनके टारगेट बढ़ते हैं और इस तरह से बच्चे माशाल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में बच्चे सिंगल डिजिट लाते हैं लीडर का शामिल करना रोशन जैसे आपके तीन जो टॉपर थे, तो इधर इस माहौल में लड़कियों का टॉपर कोई नहीं है। देखिए, लड़कियों के लिए ही पूरे एफर्ट करते हैं। गुज़श्ता साल मतलब नहीं, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की की टॉपर नहीं थी शाहीन ग्रुप। नहीं, अब हम सब कम ही स्टूडेंट को लेकर निकले क्योंकि हर साल स्टूडेंट को 50-60 के ग्रुप को लेकर ऑल इंडिया टूर कराते थे शाहीन की तरफ से, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से जो है हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेकर आज बेंगलोर में आए हैं और इस दफा हम बॉय स्टॉपर हैं। और हमारा मानना है कि पैदा करने वाले ने बॉयज को रहीम बनाया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेटियाँ हमारी पढ़ रही हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटे जिस रफ्तार से जो है पीछे हटते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से खाली होते जा रहे हैं, बेटियाँ यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियाँ कब्जा कर रही हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन बेटे जो है यूनिवर्सिटी से गायब हो रहे हैं और पीछे हटते जा रहे हैं। ये जो है एक बहुत ही खतरनाक है, इसके बहुत खतरनाक नतायज आने के अंदेश हैं और इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तमाम जिम्मेदारों से, माँ बाप से, फिक्रमंद हजरात से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लोगों को संभालें, उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, उनमें डिसिप्लिन लाएं और रात देर गए घूमने फिरने के बजाय सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोने की आदतें उनमें आएँ। और ये मोबाइल फ़ोन और ये जो है कोई एजुकेशन के अजीब व गरीब कल्चर से नस्ल को बचाने के लिए ताकत बनाएँ और इसके जो है मुनाफिक से पैसे पूरा जो है माशरती निज़ाम को गर्म हो सकता है। ये इम्बैलेंस तो आज हमको एहसास हो रहा है कि बढ़ जाए, पूरा माशरती निज़ाम गर्म होने से उनको बचाना चाहिए और इसकी फिक्र करनी चाहिए। शुक्रिया, अपना शेमन से बात करें कि आधे साल हम देख और कामयाबी